Hello, Mahima. This is Prashant again. Well, I'm recording this video, which I never wanted to and never intended to. However, I am recording this video in good faith so that I can resolve the matter that is going with us in a very amicable way so that we come to a conclusion. Therefore, we are not able to waste each other's life. So, I quickly want to start this video with couple of things and keeping the law of the land in mind. I told you very clearly that in our matter, things are just not fine. You are behaving very abnormally, Mahima Rebecca Bacon. You are not behaving normal at all. Therefore, I have to take this action to come out and speak my point of view and speak my front so that you understand it. And this video, again, this video is not based to humiliate you. This video is not based to insult you in any form. However, I want to get answers out of you which you are not responding me to. What you're doing is just keeping quiet for no reason and prolonging the situation for no reason at all. There can be multiple, as per my assumption, there can be multiple reasons for that, for which I do not want to go on it right now. However, later on, therefore, probably I may go on to it, but for now, I don't think that's it's an appropriate time. However, I'm going to read out the disclaimer before I start the video and on the context that I'm starting this particular video and concerning Mahima Rebecca Bacon, a person who has married me legally and is not fulfilling her marital obligation. And it is something that is not liable and it is harassing somebody and wasting the time, life, and money of someone whom you're associated with, and you're keeping a thing in your head that which can be your assumption. Well, I don't want to go in it. Well, okay, fine. Moving on, I want to start with Article 19. I'll read it out so that it makes sense to you, so that I'm keeping the legal boundaries. I'm within the legal boundaries to associate my opinion in this particular video. First of all, I want to go with Article 19. I am making this video in the area of Article 19 of my constitutional right. I have the right to speech. I can speak my opinion out. I can put my conference where I think it is right or wrong. I have that right to give my opinion. So as per Article 19, everyone has the right to freedom and opinion and expression. The right includes freedom to hold opinions with the interference and to seek, receive, and impart information, idea through any media and regardless of frontiers. So this is something that I'm seeking. I'm seeking information out of you. That is what I require. I don't want to insult you. I don't want to do anything. I'm just seeking information which you are ignoring. That I don't think is appropriate in this particular case. What I think is you must provide me with a resolution or an answer, which you are not doing it. I want answers, Mahima Rebecca Bacon. I want answers from you. Anyway, moving on. As per Honorable Supreme Court of India, when a dispute reach courts, keep that in mind very carefully. As per Honorable Supreme Court of India, when a dispute reaches court, by that time it becomes the matter of public concern, and it is readily available to public as per section 52 1 section q point 4. On this context, I'm making this video. Lastly, talking of defamation, I'm not trying to defame you. First of all, I'm not all trying to defame you. What I'm trying to do here is I'm trying to seek answers. Therefore, I'm asking questions from you. That's a simple part.
I want answer. If you can please give me answers, because you have kept me in darkness from past 3 years, almost 3 years now, and you're chilling out your life. I don't know what is your concern at the moment, whatever it can be. It is, well, if you'll discuss it with me, probably I'll be able to help you, but unfortunately you're not doing that. Therefore, I am trying to ask you questions publicly. Mahima Rebecca Bacon, the question is for you. As per section 499, Honorable Supreme Court and Honorable the Courts of Justice in India grants this exception number 4, which clearly entails publication of report of proceeding of court is not defamation. I wasn't expecting that to happen, but I'm going quickly going to hang this phone because I don't need to. I'm in the middle of something. Anyway, so publication of report of proceedings of court is not defamation to publish substantial, true report of proceedings of a court of justice or of the result of any such proceedings. Again, let me keep this thing very clear. I'm just trying to put my point of view as per my right of freedom of speech, and three things that I want to convey here. One, I have the right to speech and I can portray my opinions and whatever I want to say in the context what I'm dealing with. That is one. Secondly, the Honorable Supreme Court grants me this wonderful section 52. And the third is, I'm not here to defame you. I'm here to seek answers to my questions, and that's about it. And that is truly it. मुझे बस अपने क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए आपसे, जो आप मुझे नहीं दे रहे हो, which is not good. So therefore, please help me reach a conclusion so that मुझे भी तंग ना हो, मैं भी परेशान ना हूँ, आप भी परेशान ना हो. मैं चाहता हूँ कि आप मुझे क्लियर कट आंसर दीजिए उस चीज़ का जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, और हम इस चीज़ पे आगे बढ़ते हैं. That was indeed a very long disclaimer. Now we'll start the real part. Today we will be talking about DV का litigation. So it means domestic violence का litigation. जो आपने महिमा रेबेका बेकन, जो आपने मेरे ऊपर डाला है, आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया, और इसी लिटिगेशन में आपने कुछ डिमांड्स रखी हैं, कुछ मॉनेटरी डिमांड्स एंड frivolous demands. Honestly, when I read them, it just makes me laugh. Honestly, I can't help it. बट हम आज ये लिटिगेशन को डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट. आपने तो अपने पॉइंट दे दिए. नाउ it's turn for me to give my points, what I think of them, and we can maybe things will be clear from there onwards. But anyway, I mean, from an honest front, I feel tarnished. I literally feel tarnished coming to a point in life where I am discussing things which are not even required, and it feels really, I don't know, it's a very different feeling. Having said that, I also would like to add कि it's more like need for the hour. I mean, I have to do it. I have to do it at any cost. If it comes to wrestle with the pigs, then you really have to enter the terrain and wrestle with the pigs. That's what it is all about. And again, feeling tarnished, but need for an hour, I have to do it. So आज हम पॉइंट बाय पॉइंट, जो आपने महिमा मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का लिटिगेशन किया है और जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे इन डिटेल. बिकॉज इट्स एज सून एज यू हैव गॉन टू द कोर्ट, जैसे ही आप कोर्ट में गई, आपने चीज़ों को पब्लिक कर दिया, एंड अब मैं अपना ओपिनियन उस पब्लिक डॉक्यूमेंट पे दे रहा हूँ. दैट इज़ what it is about.
चलो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, फर्स्ट पेज से, फर्स्ट लाइन से. That is how, by the way, just to add, that is how a domestic violence का litigation looks like. It's very common. Um, this is what I have heard from a lot of other people who are going through a similar situation like me. And when जब मैंने उनको ये चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करी तो उन लोगों ने यही चीज़ बोली कि their experience was it's all same man, like literally same ही है ये सब चीज़ें. But anyway, moving on, let's just start with it. So ये पूरा, बाय द वे, ये जो पिटिशन है ये हिंदी में है. सो मैं हिंदी में बोलूँगा और मैं अपना जवाब हिंदी में ही देने की कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सके. सो पेपर बोलता है, न्यायालय श्री SDI गाजियाबाद. वाद संख्या इसमें लिखी नहीं है. गिव मी 1 सेकंड, जस्ट सी इफ आई हैव वाद संख्या ऑन दिस वन. इज इट? इसमें वाद संख्या नहीं है, बट कोई बात नहीं, ये इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा. अगर महिमा आपको ये चीज़ मिल नहीं रही तो आप इंटरनेट से जाके ये चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं. इट्स पब्लिकली अवेलेबल. सो पहली लाइन स्टार्ट होती है, श्रीमती महिमा रेबेका बेकन, पत्नी श्री प्रशांत दास, पुत्री श्री, इनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, निवासी डैश 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 प्लेस, राजनगर एक्सटेंशन, थाना नंदग्राम, गाजियाबाद. इनका आधार नंबर लिखा हुआ है, अब इनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, और बस दैट्स अबाउट इट. बनाम द अदर पार्टी. सो अदर पार्टी इज प्रशांत and other relatives of Prashant. And it feels really bad when you involve family into things. It's really bad. But क्या करें? Need for the hour again. Can't help it. But anyway, moving ahead. So समस्त निवासी गण मकान नंबर डैश 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 फरीदाबाद हरियाणा में रहते हैं. अच्छा, इन लोगों ने ये धाराएं लगाई हैं, ये धाराएं लगी मेरे ऊपर. धारा 12 सप्तित, धारा 17, 18, 19, 20, 22, 23 और ऑब्लिक में 2. सो ये धारा मेरे पर लगी हैं. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, थाना नंदग्राम, प्रार्थना पत्र. और थाना नंदग्राम बात है गाजियाबाद का एक पार्ट है. it's not a good place to be. Anyway, and I've been there actually twice. महिमा, आप ही ने मुझे भेजा है. आपको भी शायद याद होगा कि मैं 2 बार नंदग्राम थाना, 2 बार आई बिलीव, 2 बार नंदग्राम थाने में गया हूँ, विच वॉज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस ऑनेस्टली. मतलब कोई थाने में क्यों जाएगा यार, मतलब, और वो भी फॉल्सली अक्यूज्ड आप किसी को कर रहे हो. इट इज नॉट फेयर एंड इट इज रॉन्ग यार. मतलब इट इज स्टीपिंग डाउन टू अ लेवल वेयर इट इज लोएस्ट देन हेल ऑनेस्टली. तो बहुत नीचता है. पहला पॉइंट, प्रार्थना पत्र धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में श्रीमान जी, प्रार्थनी वादनी निम्न निवेदन करती है, यह कि प्रार्थनी वादनी श्रीमती महिमा रेबेका बेकन, पुत्री डैश डैश डैश, फ्लैट नंबर डैश डैश डैश, राजनगर एक्सटेंशन, थाना नंदग्राम, गाजियाबाद, मोबाइल नंबर डैश 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 की शादी विपक्षी संख्या 1 श्री प्रशांत दास, पुत्र डैश डैश डैश, निवासी, अगेन I'll just censor the thing, फरीदाबाद हरियाणा के साथ क्रिश्चियन रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 25 नवंबर 2020 को इंग्राम मेथोडिस्ट चर्च, हापुड़ रोड, गाजियाबाद में संपन्न हुई थी. ये बिल्कुल सच बात है, ये हुआ था. सो मेरा ओपिनियन इस पे सिंपल है कि ये हुआ था, ये सच बात लिखी हुई है इसमें. महिमा, आपका एड्रेस बिल्कुल सही लिखा हुआ है. मेरा एड्रेस यहाँ पे गलत लिखा हुआ है बिकॉज मैं इस एड्रेस में नहीं रहता था. मेरा दूसरा एड्रेस था, जो आपको पता है महिमा. मेरे पेरेंट्स जहाँ पे रहते हैं उनका एड्रेस क्यों लिखवाया आपने. बट ये बात सच है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ. दूसरा पॉइंट यह है कि दूसरा पॉइंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस का लिटिगेशन, यह है कि विपक्षी गण एक संयुक्त परिवार है. अब नाउ मुझे यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है. संयुक्त परिवार का मतलब क्या होता है? जॉइंट फैमिली, दे आर लिविंग टुगेदर, इज दैट व्हाट संयुक्त परिवार मीन्स? अगर इसका मतलब ये होता है तो ये गलत बात है. मेरा भाई अलग स्टेट में रहता है, मैं अलग स्टेट में रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स अलग स्टेट में रहते हैं. तो अगर संयुक्त परिवार का ये मतलब है कि वी आर अ जॉइंट फैमिली, देन वी आर नॉट. दिस इज अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड यू आर अवेयर ऑफ इट महिमा. तो तुमने ये झूठी इन्फॉर्मेशन क्यों लिखवाई यहाँ पे? एनीवे, थर्ड पॉइंट. सो मैं दूसरे पॉइंट से एग्री नहीं करता हूँ, ये गलत इन्फॉर्मेशन है. थर्ड पॉइंट,
यह है कि प्रार्थनी वादनी के माता पिता, गॉड, फॉक्सी इन द हाउस, वी आर लिविंग द लाइफ। एनीवे, सो थर्ड पॉइंट, ये कि प्रार्थनी वादनी के माता पिता ने शादी के समय विपक्षी गणों तथा बारात मेहमानों के रुकने व खाने का अरेंजमेंट वीवीआईपी स्वीट्स राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में किया था। प्रार्थनी वादनी के माता पिता ने करीब 8 लाख का खर्चा व स्त्री धन के रूप में सोना चांदी के जेवरात, कपड़ा व घरेलू सामान आदि दिया था, जिन सबको प्रार्थनी वादनी अपने साथ लेकर अपने ससुराल, पता गलत पता दिया है आपने यहाँ पे, पर गई और समस्त स्त्री धन विपक्षी संख्या 1 प्रशांत दास और उसके परिवार वालों को सौंप दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप के पहली बात, आपके पेरेंट्स ने 8 लाख रुपए का कोई खर्चा नहीं किया था, ये गलत बात है। और आप कोई स्त्री धन नहीं लेके आई थी। आप स्त्री धन का मतलब क्या होता है, मतलब have you brought any ornaments or something like that, but you haven't। आप कोई स्त्री धन अपने साथ नहीं लेके आई थी एक्सेप्ट फॉर अपने कपड़े, दैट्स इट। आप कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं लेके आई थी मेरे घर पे, एंड दैट्स इट। और हमने कोई ऐसी डिमांड भी नहीं रखी थी आपसे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। और आपके फादर ने क्लियर किया था महिमा कि अगर आप कुछ लेते तो हम अपनी बेटी की शादी नहीं करवाते। बट एनीवे, मतलब आपने यहाँ पे क्यों झूठ लिखा है मुझे नहीं पता। और आपने ये भी झूठ लिखा है कि करीब 8 लाख का खर्चा किया था। बाप रे, 8 लाख का खर्चा मीन्स लाइक अ लैविश प्ले थिंग टू डू। एंड आई डोंट, मुझे नहीं लगता कि आपका 1 लाख से या 1.5 लाख से ऊपर कुछ खर्चा हुआ होगा। दैट्स इट। एंड बाय द वे, जो आपने यहाँ पे एविडेंस में भी कुछ लगाया है वो भी 1 लाख रुपए का रसीद है, दैट्स इट। 1-1.5 लाख रुपए का रसीद है। 50,000, आई डोंट नो, 50,000 अपने फूल में खर्च, फूल माला या फिर लोगों के रुकने में खर्च किया, और 1 लाख रुपए में आपने बैंक्वेट बुक किया था, दैट्स इट। दैट वाज योर टोटल खर्चा। बट आपने 8 लाख रुपए का बताया। ओह माय गॉड, दैट्स हेरेंडस एंड हिलेरियस एट द सेम टाइम। सोने चांदी के जेवरात, आप कोई सोने चांदी का जेवरात नहीं लेके आई थी। आप सिर्फ कपड़े लेके आई थी। घरेलू सामान आप कुछ नहीं लेके आई थी। बाय द वे, अगर आपको मैंने आपको जो लीगल नोटिस भेजा था ना, पहला वाला, उसमें आपने कोई और सामान का जिक्र किया है। इस थर्ड पॉइंट में आप कुछ और सामान का जिक्र कर रहे हैं। मतलब इट डजंट कोरिलेट, और इसमें सब बात झूठी है ऑनेस्टली मैं अगर बोलूं तो एनीवे, पर ओके, सौंप दिया। शादी के कुछ समय तक विपक्षी गणों का व्यवहार प्रार्थनी वादनी के प्रति ठीक रहा, किंतु कुछ समय बाद प्रशांत दास पति व प्रार्थनी वादनी की सास डैश 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 व ससुर डैश 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 देवर डैश 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 सभी मिलकर ताने मारने शुरू कर दिए कि तेरे माँ बाप ने हमें दिया क्या है। अगेन इट्स अ वेरी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। किसी ने महिमा आपको कोई ताने नहीं मारे। ये आप मन गढ़ंत कहानी बना रही हो, इट्स अ मेड अप थिंग। आपको बहुत प्यार से रखा गया था। अगर आपको उसका भी एविडेंस चाहिए तो मैं, मेरे पास, आप 3 महीना रही हो मेरे साथ टोटल, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तीनों महीने की फोटोज है मेरे पास। और उसमें आप कहीं पे भी बिल्कुल भी निराश या फिर ऐसे ताने मारती हुई तो बिल्कुल नजर ही नहीं आ। तो बहुत खुश अब तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्यों झूठ लिखा है यार? दैट इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड। एनीवे, फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। यह कि प्रार्थनी वादनी सुबह से लेकर दिन भर घर का सारा काम व शाम का खाना बनाने का सारा काम करती थी। ओके, दिस इज अ लाई। अगेन महिमा, आपने आज तक घर में एक बार खाना बनाया है, और आपने बहुत अच्छा खाना बनाया था। मैंने आपको अप्रिशिएट भी किया था उस चीज के लिए। आपने संडे को मेरे लिए लंच बनाया था आपने, एंड इट वाज वंडरफुल। बट अगर इस बात की जो आपने लिखा है कि यह है कि प्रार्थनी वातनी सुबह से लेकर दिन भर घर का सारा काम व शाम का खाना बनाने का सारा काम करती थी, ये तो झूठ बात है। आप अपने ऑफिस के काम में लगी रहती थी। आप 9-10 बजे आई थिंक उठती थी और शाम के 8-9 बजे तक अपना काम फिनिश करती थी। एंड दैट टू व्हेन यू वर एट वर्क फ्रॉम होम। आप घर पे थी और बस आप लैपटॉप के सामने ग्लूड रहती थी, चिपकी हुई रहती थी। आपने कभी कोई घर का काम नहीं किया। आपने हाँ एक बार लंच बनाया मेरे लिए, एंड इट वाज अ वेरी टेस्टी लंच दैट आई एंजॉयड इट। बट ये गलत बात है। आप घर का कोई काम नहीं करती थी, और खाना तो भैया आपने कभी बनाया नहीं। लेकिन प्रार्थनी वादनी की सास श्रीमती डैश 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 पूरे दिन किसी न किसी बात पर ताने कसती थी। पूरे दिन भर कैसे? मेरी मदर वर्किंग है और वो दिन भर में रहती नहीं, वो अपनी जॉब पे जाती हैं। वो तुम्हें दिन भर कैसे ताने बकते, क्या नाम है, ताने कस देंगी? हाउ इज इट इवन पॉसिबल?
और जब वो शाम को आते हैं तो वो अपना रेस्ट करते हैं. शी डजंट इंटरैक्ट विद पीपल, आई मीन मच. तो ये भी झूठ बात लिखी है आपने. नेक्स्ट पॉइंट, प्रार्थनी वादनी की लाख कोशिशों के बाद भी प्रार्थनी वादनी का कोई भी कार्य पसंद नहीं करती थी. झूठ है ये. विपक्षी संख्या एक प्राइवेट कंसल्टेंसी का कार्य करता था, जो करीब 50,000 रुपए से ज्यादा कमाता है. ऐसा प्रार्थनी के सास व ससुर ने शादी से पहले प्रार्थनी व उसके माता पिता को बताया था. ये बात एकदम झूठ है. महिमा, अरेंज मैरिज जरूर है, बट तुम्हें भी ये पता है कि हमने अपनी शादी कैसे डिसाइड करी थी. हम दोनों ने मिल के वी केम टू अ कंक्लूजन. हमारे पेरेंट्स का तो कोई रोल था ही नहीं बीच में. इट्स जस्ट योर पेरेंट्स केम टू माय होम फॉर अ स्वीट थिंग एंड माय पेरेंट्स वेंट टू योर होम टू फिक्स द थिंग. दैट्स इट. इसमें कोई प्राइवेट का, और बाय द वे मैं किसी प्राइवेट कंसल्टेंसी में कार्य नहीं करता हूँ. मैं अपने क्या बोलते हैं, आई हैव माई ओन थिंग. मेरी अपनी खुद की सेल्फ प्रैक्टिस है, सेल्फ एम्प्लॉयड. ये भी झूठ है. और प्राइवेट कंसल्टिंग में 50,000 रुपए से ज्यादा कमाता है ऐसा प्रार्थनी के साथ, झूठ है ये बिल्कुल गलत बात है. अब ऐसे ये कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ ही नहीं था. ओके. प्रार्थनी वादनी की सास व ससुर मारते थे और बोलते थे व्हाट द फक, व्हाट द हेल इज दिस. मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे हंसी आ रही है पढ़ के ऑनेस्टली. मारते थे और बोलते थे कि प्रशांत के लिए अच्छे ऑफर आ रहे हैं, दूसरी जगह शादी करते तो दहेज में काफी पैसा और कार मिलती. इस तरह से कहकर प्रार्थनी वादनी को उक्त सभी विपक्षी 1 2 3 4 तंग व परेशान करने लगे. प्रार्थनी ने सोचा कि अभी नई नई बात है, कुछ समय बाद इनका व्यवहार में बदलाव आ जाएगा. इसी तरह 2 3 माह बीत गए थे. हो गॉड. अच्छा, पहली बात मुझे बताओ यार, कोई रिसेंटली शादी करके आया जिसकी शादी को लिटरली 6 महीने भी नहीं हुआ, उसमें कोई मतलब कॉमन सेंस की बात है, लॉजिकल बात, कि कोई ऐसा बोलेगा भी कि तुम घर से, क्या लिखा है कि दूसरे ऑफर आ रहे थे. आर यू किडिंग मी? लाइक सीरियसली, इज इट इवन लॉजिकल? इज इट? भैया किसने लिखी है ये पिटीशन? झूठ है यार. दिस इज, यू नो इट महिमा. ऑफर आ रहे थे भाई, तुम्हारी रिसेंटली शादी हुई है यार, अभी शादी हुई है और तुम अभी से ऐसे कोई बोलने लगे कि ऑफर आ रहे थे. दिस इज रॉन्ग यार, दिस इज नॉट राइट. मारते थे और बोलते थे कि प्रशांत के अच्छे ऑफर आ रहे हैं, दूसरी जगह शादी करते तो दहेज में काफी पैसा और कार. भाई पहली बात, मुझे किसी के पैसे की जरूरत नहीं है. अगर मुझे पैसे की जरूरत होती तो मैं आपसे इनिशियली ही डिमांड करता कि मुझे आपसे पैसे. एंड यू नो इट हमारे बेका बेकन, कम ऑन. How am I? Why am I even explaining you? This is false information. You know it. You literally know it. और तो बाय द वे, तुम्हारे पास देने के लिए बोलना नहीं चाहिए ऐसा, बट देने के लिए, आई मीन, हैव यू इवन ऑफर्ड मी समथिंग? नथिंग. मैंने कुछ मांगा भी नहीं और तुमने कुछ ऑफर भी नहीं किया. तो भाई एनीवे, जो देने वाला बंदा होता है वो देता है, जो लेने वाला होता है वो लेता है. बट आई एम नॉट लाइक, एंड यू नो दैट किसी ने कुछ नहीं किया आपके साथ. ये झूठ बात है. अब ये झूठा ब्लेम मेरे ऊपर और मेरे परिवार वालों के ऊपर लगा रही हो. एनीवे, मैं इसे प्रूव कर सकता हूँ. 5th पॉइंट यह है कि प्रार्थनी वादनी ने अपनी ससुराल में विपक्षी गणों की सेवा की, सम्मान किया तथा विपक्षी संख्या 1 को हाके जोजियत अदा की. अब इसका मुझे मतलब नहीं पता है हाके जोजियत अदा की का, बट मैं यही बोलना चाहूंगा. विपक्षी गणों को सेवा में सम्मान किया तथा, इट्स अ वेरी डूबियस स्टेटमेंट. ये मतलब इसमें इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट फॉर मी. जो मैं ये नहीं बोलूंगा गलत है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा सही है. ऑफ कोर्स जब कोई लड़की कहीं मैरिज होके आती है तो शी शोज हर बेस्ट बिहेवियर पॉसिबल. तो अगर हम कुछ 1 2 दिन की बात करें स्टार्टिंग में, तो यस आई वुड एग्री, बट later on it just declined. Your behavior was, I don't know, I don't want to comment on it about it. but हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये झूठ है. ये मतलब अगर आप ये लॉन्ग टर्म में बात कर रहे हो तो ये झूठ तो नहीं, गलत है, बट आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दिस पॉइंट, टू बी ऑनेस्ट. 6th पॉइंट यह है कि शादी के समय से ही प्रार्थनी वादनी की सास व ससुर ने ताने मारने शुरू कर दिए. झूठ. कि तू प्रशांत के लायक नहीं है. दिस इज ऑल्सो झूठ. तू इसको तलाक दे दे, वरना हमारे कहने पर ये तुझे तलाक दे देगा. ये गलत बात है भाई. अच्छा, बाय द वे लेट मी क्लियर दिस कि मैंने डाइवोर्स का लिटिगेशन अपनी तरफ से इनिशिएट किया.
कर किया हुआ है, प्रशांत ने लिटिगेशन अपनी तरफ से इनिशिएट किया है, सो दैट क्योंकि ये मैंने किया था लास्ट ईयर फरवरी 22 में, एंड उसका रीजन सिंपल था, बिकॉज महिमा अगेन वाज रिस्पॉन्डिंग इन अ सिमिलर मैनर दैट शी इज राइट नाउ। आप महिमा, आप मुझे वैसे ही ट्रीटमेंट जैसे अभी दे रही हैं वैसे पहले भी दे रही थी। आपने हर जगह से ब्लॉक करके रखा हुआ था, तो आप बात करने को रेडी नहीं थी, आप मैटर सॉल्व करने को रेडी नहीं थी, एंड हमारा जो डिजर्शन का पीरियड था, जो आप मुझे मेरे से दूर रह रही थी, दैट वाज मोर देन मोर देन अ ईयर। सो मुझे लगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से डाइवोर्स का इनिशिएट किया। बाकी जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि तलाक दे दे वरना हमारे कहने पर तुझे तलाक दे देगा, ये स्टेटमेंट गलत है। ये किसी के कहने पर आपने आपको तलाक नहीं दिया, बट आपकी हरकतों की वजह से मैंने आपको तलाक दिया का एप्लीकेशन का लिटिगेशन डाला है। तो ये रीजन है मेरी तरफ से मेरा डाइवोर्स डालने के लिए आपके प्रति। मुझे किसी ने बोला नहीं है कि आप डाल दो। प्रार्थनी वादनी ने अपनी सास व ससुर को यह कहकर समझाया कि शादी बार बार नहीं होती है। ऑफ कोर्स दिस इज राइट, शादी बार बार नहीं होती है जो मैं तलाक दे दूं। ओके, वेल आई वुड एग्री टू दिस स्टेटमेंट। ये सही बात है। अगर आपने ऐसा बोला है नहीं बोला है ये मुझे नहीं पता है, बट हाँ, शादी बार बार नहीं होती है, और कि आप किसी को तलाक दे दो। ओके, मूविंग ऑन। प्रार्थनी वादनी की इस बात पर प्रार्थनी के ससुराल वाले और नाराज हो गए और चिढ़ने लगे और कहने लगे कि एक फ्लैट यार दिस लिटरली क्रैक्स मी अप, दिस जस्ट क्रैक्स मी अप कि एक फ्लैट चाहिए हमें, एक नई होंडा कार चाहिए प्रशांत के लिए, और एक केटीएम बाइक सुशांत के लिए। सुशांत मेरे भाई का नाम है, बाय द वे, आई शुडंट बी टेकिंग हिज नेम इन दिस, बट बाय द वे ना ही मुझे और ना ही मेरे भाई को मोटर बाइक राइड करनी आती है। मुझे टू व्हीलर राइड करना नहीं आता है। मेरे फ्रेंड के पास स्कूटी है, उसकी मैंने स्कूटी ट्राई करी है, एंड दैट्स अबाउट इट। उससे ऊपर कुछ नहीं। केटीएम बाइक, it's a good bike, it's a racing bike, but we are not into racing, so it doesn't suit us। KTM नहीं। अगर यार कुछ ऐसे क्रूजर बाइक बोलते तो मतलब जैसे हार्ली डेविडसन या फिर ऐसा कुछ, या फिर काइंड ऑफ क्रूजर बाइक, तो फिर एक बार को लगता कि हाँ चल ठीक है, बट KTM इज जस्ट नॉट द टेस्ट मैन। लाइक लिटरली क्यों लिखा है ये? अच्छा, और लिखा है कि अपने बाप से लेकर दे, और इस घर में रहना है तो प्रार्थनी वादनी ने ससुराल वालों को काफी अच्छा ओके, इसका ये मतलब है कि पहले अपने फादर से बोलो कि हमें एक फ्लैट दे, एक नई होंडा कार दे प्रशांत के लिए, और एक केटीएम बाइक उसके छोटे भाई के लिए। अपने बाप से लेके आ अगर इस घर में रहना है तो। सीरियसली एनीवे, प्रार्थनी वातनी ने ससुराल वालों को काफी समझाने को प्रयास किया कि मेरे माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है, वह चर्च में पादरी हैं, सेवा का काम करते हैं। किंतु प्रार्थनी वादनी की ससुराल वालों ने कोई बात न मानी, और उसी दिन प्रार्थनी वादनी को पहने हुए कपड़ों में माता पिता के निवास स्थान पे गाजियाबाद छोड़ गई। ये बात बिल्कुल झूठ है महिमा। आपको जिसमें देखिए, आपकी मदर की डेथ हुई, राइट? आपकी मदर की डेथ इस रीजन से हुई है, ये आपको पता है। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, एंड आई एम सो सॉरी टू ब्रिंग दिस आउट हेयर। मुझे नहीं बोलना चाहिए ये चीज, बट आपने ये लिखा है तो फिर मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। पीक कोविड में 500 लोगों की गैदरिंग कौन अटेंड करता है मेरे भाई? लिटरली कौन अटेंड करता है? एंड दैट टू आपने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया महिमा। आपने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया कि मुझे एक शादी में जाना है कानपुर सिटी में, और वो भी मिड कोविड, और आप मुझसे झूठ बोल के मेरे घर से चली गई। और आप यहाँ पे ये लिखती हो कि एक तो हमने तो आपसे फ्लैट, कार और बाइक की डिमांड करी, और आपसे ये बोला गया कि अपने बाप से लेके, अपने फादर से लेके आ अगर इस घर में रहना है तो। और आपने ये बोला कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे फादर चर्च में पादरी की सेवा काम करते हैं। तो ससुराल वालों ने आपकी कुछ नहीं सुनी और आपको पहने हुए कपड़ों में आपको आपके घर छोड़ दिया, निवास स्थान पे गाजियाबाद छोड़ दिया। आप अपनी मर्जी से अपने घर गई थी। आपको क्योंकि किसी की पता नहीं किसकी, वो भी कोई रिश्तेदार तो थे नहीं आपके, उनकी शादी अटेंड करनी थी, और वो भी मिड कोविड, वो भी पीक सीजन में। वापस आया, देखा ना क्या हुआ। I mean, it was a very unfortunate event that happened, but you should adhere to some laws। आपको लॉ की बात समझनी चाहिए। पीक सीजन में कोविड में जाओगे वो भी झूठ बोल के, तो what do you expect?
और आप इसको तो ऐसे तोड़ मरोड़ के यहाँ पे बता रहे हो, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, अ फॉल्स स्टेटमेंट। सेवेंथ पॉइंट यह है कि प्राथनी वादनी के की माता ने बड़ी मुश्किल से 2 लाख रुपए मेरी मदर का नाम लिखा है, मेरे फादर का नाम लिखा है, को दिए और हाथ जोड़कर कहा कि हमारे पास और पैसे नहीं हैं, अब और ज्यादा हमारी बेटी को परेशान मत करो। लेकिन इन लोगों ने 2 लाख रुपए लेने के बाद भी 10 लाख रुपए और एक होंडा कार, केटीएम बाइक की और डिमांड की। प्राथनी वादनी व उसके माता पिता के लाख समझाने पर भी विपक्षी गण नहीं माने, जिस कारण प्राथनी वादनी आज तक अपने माता पिता के घर रह रही है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। आप अपने माता पिता के घर अपनी मर्जी से रह रही हो। मैंने आपको बहुत बुलाने की कोशिश करी, मैंने आपको बहुत ईमेल्स भेजे, बहुत फोन कॉल्स किए, बहुत टेक्स्ट मैसेजेस किए, आपने नहीं सुना। अच्छा, बाय द वे आपने अपनी मदर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, फादर का नहीं लिखा हुआ है, ये बड़ा डाउटफुल है। मतलब आप ऐसे इंसान का नाम लिखा है जो दुनिया में नहीं है, और उन्होंने 2 लाख रुपए दिए कि वो प्रेजेंट ही ना हो पाए कभी कोर्ट में। वाह, वेरी स्मार्टली प्लेड एक्चुअली, यू प्लेड ऑन योर डेड मदर यार। कैन यू इमेजिन, आपने अपनी क्या रिस्पेक्ट छोड़ी यार अपने अपने फैमिली के लिए, सीरियसली। वेल, 2 लाख रुपए दिए, अभी आप ऊपर बोल रहे हो हमारे हम मेरे फादर पादरी हैं, चर्च में पादरी हैं, और यहाँ और उनके पास पैसे कहाँ से होंगे, और अब यहाँ बोल रहे हो 2 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से दिए। आपके पास कोई ट्रांजैक्शन है इस पेमेंट का, बाय द वे, जो आपने यहाँ पे मेंशन किया है? अगर है तो मतलब दैट विल बी लाइक अ बोनस, बिकॉज आई वुड लाइक टू सी, मैं देखना चाहता हूँ जो आपने यहाँ पे लिखा है आपकी। और आप ये लिखते हो कि आपको तंग किया जाता था, परेशान मत करो आपकी बेटी को और आप महिमा, आपको किसी ने परेशान नहीं किया यार, आपको बल्कि और हाथों पे रखा था। बट अनफॉर्चुनेटली वही है ना कि बंदर के जाने अदरक का स्वाद, नहीं, बंदर के जाने अदरक का स्वाद नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट। भैंस के आगे बीन बजाना, नहीं नहीं, सुअर के आगे अपने मोती डालना, दैट इज द राइट टर्मिनोलॉजी। आपको बहुत पैम्पर करके रखा गया था मेरे घर पे, मैंने भी आपको बहुत पैम्पर किया था, बट वो ये सुअर के आगे मोती डालना, इट्स वर्थलेस। हमारी इंडिया में ये हिंदी में सेइंग है यार, एंड इट इज ट्रूली राइट, इट अप्लाइज हियर वेरी वेल। मतलब लिटरली लाख समझाने पे, दिस इज शेमफुल यार, दिस इज लिटरली शेमफुल व्हाट यू हैव रिटन हियर, और हूसोएवर हैज रिटन दिस इज, मतलब कोई ख्याल नहीं किया भाई तुम, दिस इज नीचता की हद अगेन, अनदर लेवल ऑफ लोनेस, चीपनेस, नीचता। एनीवे, मूविंग टू 8th पॉइंट, यह कि दिनांक 19/4/2021 को प्राथनी वादनी की मां को देहांत कोविड महामारी के कारण हो गया, परंतु देहांत की खबर होने के पश्चात पश्चात भी प्राथनी वादनी के ससुराल पक्ष से कोई नहीं आया, जिस कारण प्राथनी वादनी को अत्यधिक मानसिक आघात पहुंचा। प्राथनी वादनी की मां का देहांत होने के पश्चात भी विपक्षी गणों के बर्ताव में कोई कमी नहीं आई। ओके, आपकी मदर के डेथ पे मैंने आपको फोन किया था। लेट्स क्लियर दिस थिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ ऑन द रिकॉर्ड। जिस दिन आपकी मदर की डेथ हुई, विच इज 19 अप्रैल 2021, उस दिन दिल्ली, आप गूगल कर सकते हैं, आपके सामने आपका पीसी है, आपके सामने आपका मोबाइल फोन है, आप बस गूगल पे अंदर लिखिए 19 अप्रैल 2021 दिल्ली गवर्नमेंट्स ऑर्डर। वहां पे ये लिखा हुआ है कि दिल्ली पूरी तरह सील्ड है, नो बडी कैन गो हेयर एंड देयर। मैं हरियाणा में रह रहा था, आप उत्तर प्रदेश में रह रही हो, और बीच में दिल्ली पड़ता है। हरियाणा वॉज ब्लॉक्ड, अगर मैं यहाँ से निकलने की भी कोशिश करता मैं नहीं निकल पाता। दिल्ली वॉज ब्लॉक्ड, यहाँ से निकल के दिल्ली पहुंचा तो वहां पे नहीं निकल पाता, और फिर देन उत्तर प्रदेश वॉज ब्लॉक्ड। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रियली, मैं आपकी मदर के फ्यूनरल पे आता, पहली बात। दूसरी बात, उस टाइम कोविड की पीक थी, वाई वुड आई एम लाइक आई हैव टू बी सेफ फॉर फॉर I have to be safe also, and my parents are old, I can't take risk। भाई, आप रिस्क लेके 500 लोग की गैदरिंग में पीक कोविड में जा सकते हो, बट वो रिस्क मैं नहीं ले सकता हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, स्पेशली इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो आई टोल्ड माई पेरेंट्स वेरी क्लियरली नॉट टू गो बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन, एवरीबडी वॉज डाइंग एवरीवेयर, आई डिड नॉट वांट दैट सिचुएशन टू हैपन टू मी। ठीक है, दैट्स वन। सेकेंड, मैंने आपको फोन करने की कितनी कोशिश करी, आपने मुझे
बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया, आपने कोई कॉल बैक नहीं किया, आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया। मैंने आपको बहुत कॉल किया, मैं आपको बिल्कुल आपको संभालने के लिए होता वहां पे, बट अनफॉर्चुनेटली आपने कोई, मैं समझ सकता हूँ कि योर कंडीशन वाज नॉट वेरी गुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट देन एक कॉल ही तो करना था यार, एक कॉल ही तो करना था। उसके बाद भी तो आपने, उसके बाद भी कॉल कर सकते थे, कभी भी कॉल कर सकते थे, एक मैसेज छोड़ सकते थे, दैट इट्स दैट सिंपल। आपने यहाँ पे मेरी गलती बता दी बट अपनी गलती नहीं मानी। सो मैं दोबारा इस पॉइंट को पढ़ूंगा। यह है कि दिनांक 19/4/2021 को प्रांतरी वादनी की माँ के देहांत कोविड महामारी के कारण हो गया, परंतु देहांत की खबर होने के पश्चात भी प्राथमिक वादनी के ससुराल पक्ष से कोई नहीं आया, बिकॉज इट वॉज कोविड पीक। सिंपल, नहीं आया। कैसे आता? बॉर्डर्स ब्लॉक हैं, मैं आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं, आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, कैसे आता? और आपको अत्यधिक मानसिक आघात पहुंचा। अगर आपको अत्यधिक मानसिक आघात पहुंचा होता ना, तो लिटरली आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करती या फिर मुझे कॉल करती, तो फिर शायद मैं देखता मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। इट वॉज, क्या कर सकते हैं, बट इट वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। सो अगर आपको मानसिक आघात पहुंचा तो मैं उसके लिए बहुत आई अपोलोजाइज फॉर दैट एंड आई फील सॉरी अबाउट इट कि आपको अत्यधिक मानसिक आघात पहुंचा मेरी वजह से, तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बट कोई ऑप्शन ही नहीं था, नहीं कर सकते थे उसमें कुछ भी। इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। ओके, मूविंग ऑन टू 9th पॉइंट। यह कि प्राथमिक वादनी की मां की मृत्यु होने के कुछ दिनों के पश्चात विपक्षी संख्या 1, जो मैं हूं, प्रशांत, रात के करीब 1 बजे प्राथमिक वादनी के घर, मतलब अच्छा, यह कि प्राथमिक वादनी की मृत्यु की कुछ दिनों बाद, पहली बात, ओके लेट मी कम टू दैट। रात के 1 बजे प्राथमिक वादनी के घर पता उपरोक्त पर आया और प्राथमिक वादनी से झगड़ा करने लगा, जिस पर प्राथमिक वादनी के पिता ने अवरोध जताया, तो वह प्राथमिक वादनी व उसके पिता को गाली गलौज करने लगा और प्राथमिक वादनी को पिस्तौल से गोली मारने की धमकी देने लगा। यार, हाउ इनह्यूमन यू हैव शोन मी हियर। मतलब मैं इंसान हूं कि नहीं हूं? मतलब कोविड टाइम में मैं आपके घर रात के 1 बजे आऊंगा और कुछ, मतलब इसमें लिखा है कि माँ की मृत्यु के कुछ दिनों बाद, मतलब कुछ दिन बाद, मतलब कितना, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कितना दिन बाद एग्जैक्टली मैं रात के 1 बजे आया और आपसे झगड़ा करने लगा। आपकी मदर की डेथ हुई है यार, मैं आपसे झगड़ा क्यों करूंगा? एम आई मैड? am I like am I insane? Do you think I'm insane, like by looking at me? Do you really? And by, I mean, you have been seeing me from past 30 minutes, half an hour now. Do you really think I'm insane? मैं आपके घर रात में आया, अवरोध जताया। अच्छा, बाय द वे इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो आपने पता दिया उस पे आया, जो आपका घर का पता है, और झगड़ा करने लगा आपसे, जिस पे आपके पिता ने अवरोध जताया और प्राथमिक वादनी व उसके पिता को गाली गलौज करने लगा और प्राथमिक के पिस्तौल। यार, फॉर गॉड सेक यार, आपके घर पे डेथ हुई है और मैं ये सब करूंगा? और बाय द वे, आप किसी मयूर के साथ उनके घर पे थी, राइट? राइट, 1 महीने तक। ये मुझे आपने ही बाद में बताया, ये मुझे आपके भाई ने बताया। और इन शख्स को मैंने, मयूर नामक शख्स को मैंने कॉल भी किया, तो इन्होंने मुझे कुछ सही सही डिटेल्स नहीं दी। और उस टाइम पे आपने जैसे मुझे एक बार अपने फोन पे बात करी थी मुझसे, एंड दैट वाज अ वेरी रफ टोन ऑफ यू, एंड दैट्स इट, देन यू ब्लॉक्ड मी अगेन। उस टाइम भी मैंने आपको बहुत ईमेल्स किए, बहुत कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की, अनफॉर्चुनेटली आपने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया उसका। और यहाँ पे आप लिखती हो मानसिक आघात पहुंचा, और फिर दूसरी एक और झूठ लिखती हो कि कुछ दिनों बाद, जब आप एक महीने तक गायब थे, अंडरग्राउंड थे, मैं 1 महीने में कैसे आ जाऊंगा? कुछ दिनों बाद, सॉरी, कुछ दिनों बाद आया। इट इज इम्पॉसिबल, यू आर नॉट इवन प्रेजेंट देयर, आप तो फिर अवेलेबल ही नहीं थे, मैं कैसे आ जाऊंगा आपके घर पे? ये झूठ बात लिखी है आपने यहाँ पे। ओह, गाली गलौज, पिस्तौल से मारने की धमकी। दिस इज, व्हाई विल आई शूट एनीबॉडी यार? I'm a गांधी जी's भक्त, not a भक्त, I'm a गांधी जी's follower, no violence, only peace, and I believe in that। आना, मैं पिस्तौल से गोली मारने की धमकी दूंगा आपको? अगेन, चीपनेस, लेवल ऑफ चीपनेस एट इट्स प्राइम। एनीवे, 10वां पॉइंट यह कि प्राथमिक वादनी ने कोई रास्ता न पाकर 100 पर कॉल की, तो विपक्षी संख्या 1, अगेन मैं,
रात को ही घर से निकल गया और अंजाम भुगतने की धमकी देकर गया कि तुम लोगों का जीना हराम कर दूंगा, तुम नहीं जानते कि मैं क्या चीज हूं। तुम लोग क्या था, आई जस्ट रीड दिस लाइन, ओके। अच्छा, विपक्षी संख्या एक रात को ही घर से निकल गया और अंजाम भुगतने की धमकी दी कि तुम लोगों का जीना हराम कर दूंगा, तुम जानते नहीं हो मैं क्या चीज हूं। भाई ये किसने लिखा है, लिटरली किसने लिखा है? तुम लोगों को मैं लोगों के बीच बात तो क्या खड़े होने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा, जिसकी शिकायत प्राथमिक वादनी थाना नंदग्राम दिनांक 4/6/2021 को दी थी। 4/6/2021, 4/6/2021, 4/6/2021 को आपके फादर एडमिट थे आईसीयू में। आई थिंक 2 तारीख से एडमिट थे, 2 जून से, और उसके बाद भी रहे। एंड बाय द वे, आपके पिता ने अवरोध जताया, पहला पॉइंट। मैंने गाली गलौज की, आपने 100 नंबर पे कॉल किया और मैंने आपको धमकी दी अंजाम भुगतने की, और फिर उसकी कंप्लेंट आपने 4/6/2021 को पुलिस थाने में कराई। इसमें जो ये लिखा है आपने कि आपके पिता ने अवरोध किया, आपके फादर तो 2 तारीख से लेके 2 तारीख से के 2/4/2021 में इस कंडीशन में थे, वो तो आईसीयू में थे, तो उन्होंने अवरोध कैसे जता दिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इज, इसमें लिखा कुछ दिनों के बाद, बट ये तो आपकी मदर की डेथ हुई थी अप्रैल में, ये बात है जून की। इट डजंट मेक सेंस, इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। आपने क्या स्टोरी लिखी है, गलत है। अच्छा, प्रतिलिपि संकलन भी है, अच्छा इसमें प्रतिलिपि भी डाली है। आपने यहाँ पे कोई फ्रॉड करा है क्या? लिटरली आपने यहाँ पे कोई फ्रॉड करा है महिमा? वेल, लेट मी कैच दिस पॉइंट, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट फॉर मी। इट इज वेरी वेरी शेमफुल टू सी दिस यार, इट इज। एनीवे, 10 पॉइंट। 11th पॉइंट यह है कि प्रार्थनी वादनी व उसके पिता इन लोगों की बातों से बहुत दुखी हो गए और विपक्षी संख्या एक रोज व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर उल्टा सीधा कमेंट लिखकर प्रार्थनी वादनी को व उसके पिता को बदनाम करने की कोशिश करते रहे, बिना गाली के बात तक नहीं करते, जिसकी रिकॉर्डिंग भी प्रार्थनी वादनी के पास है। लेकिन प्रार्थनी वादनी ने अपना घर बचाने के लिए एक मैसेज को भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि विपक्षी संख्या एक, दैट इज मी प्रशांत, ने प्रार्थनी वादनी व उसके पिता को बदनाम कर दिया है। ओके, सो पहले आप लिखती हो कि मैं आपको रोज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे उल्टा सीधा कमेंट लिखता हूं। अगर मैंने कुछ भी डिजिटली उल्टा सीधा लिखा है तो उसका वो तो ऑलरेडी उसमें भी होगा ना, क्या बोलते हैं, वो तो अवेलेबल होगा, वो तो आप उसका स्क्रीनशॉट या फिर वो प्रोवाइड करिए, जिसमें आपने अपने एविडेंसेस में वो कोई भी प्रोवाइड नहीं किया है कि रोज व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर उल्टा सीधा कमेंट लिखकर प्रार्थनी व के और उसके पिता को बदनाम करने की कोशिश करते रहे। आई डोंट सी एनी पूरे डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पे आपने व्हाट्सएप की या फेसबुक की उल्टा सीधा कमेंट मैंने जहाँ पे लिखा हो और आपने डाला हो। और दूसरा इसमें आपने लिखा है बिना गाली के बात तक नहीं करते, जिसकी रिकॉर्डिंग भी प्रार्थनी वादनी के पास है। मुझे नहीं पता आपके पास कौन सी रिकॉर्डिंग है और किसकी रिकॉर्डिंग है, और बिना और गाली की रिकॉर्डिंग है, तो मुझे नहीं पता ये आपने कैसे हासिल करी है और कैसे इसको आप पोर्ट्रे कर रहे हो। देखो यार, सिंपल है, आजकल गाली सब देते हैं, इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, और आप इसी पॉइंट को मेरे ऊपर डाल रहे हो, कोई रिकॉर्डिंग लेके आ रहे हो जहां पे आप ये बता रहे हो कि प्रशांत ने आपको गाली के बात तक नहीं करी। मेरी आज तक की जितनी भी ईमेल कॉन्वर्सेशन, व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन आपसे या फिर फोन पे कॉन्वर्सेशन कभी हुई है,
आप अगर मैं गाली देके बात करता हूं तो ये बहुत एविडेंट होगा कि मैं हर कॉन्वर्सेशन में, हर बात में गाली दूं, तो ये तो आपके पास काफी ढेर सारे प्रूफ्स होने चाहिए। बट आप इसमें लिखा है कि जिसकी रिकॉर्डिंग भी प्रार्थनी ने दी है, ये एक रिकॉर्डिंग है, मल्टीपल रिकॉर्डिंग्स हैं, ये क्लियर नहीं है यहाँ पे। तो प्लीज इस पे थोड़ा सा, मैं इस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ और मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। हाँ, गाली सब देते हैं, कौन नहीं देता गाली यार? आप भी गाली, आपके फादर गाली देते, आपके फादर ने मुझे कितनी गंदी गंदी गालियां बकी है, पता नहीं क्या बोलूं। और सभी देते हैं गाली यार, बट पता नहीं मुझे इस बारे में मुझे क्या बोलना चाहिए। बट आई डू नॉट सपोर्ट दिस। मैंने आपसे कभी गाली देके बात नहीं करी, और आपसे तो मैंने, मतलब यार दोस्तों के बीच में चलता है यार ये, दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग व्हेन यू सिट डाउन विथ योर फ्रेंड्स, इट हैपेंस, एवरीबॉडी एवरीबॉडी इन दिस, नोबडी इज, कोई कोई से अछूता नहीं है। सब 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 एक ही लेवल पे है इस पे, चाहे वो कोई भी हो। और अच्छा, आपने इसमें एक तीसरा पॉइंट ये लिखा है कि मैंने आपको रोज व्हाट्सएप किए, फेसबुक किया, गाली देके बात करी, बट आपने अपना घर बचाने के लिए एक मैसेज का जवाब तक नहीं दिया। तो बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हो कि आप जवाब इसलिए नहीं देते हो मुझे, या फिर आपने इसलिए मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है क्योंकि अपना घर बचाना चाहते हो। दैट इज इलॉजिकल। कोई घर, कम्युनिकेशन तोड़ना घर बचाना नहीं होता है। कम्युनिकेशन तोड़ना या जवाब नहीं देना घर तोड़ना होता है, घर बचाना नहीं होता है। काश आपने ये चीज सीखी होती, आप किसी ने आपको ये चीज बताई होती। बट एनीवे, मूविंग ऑन, 12th पॉइंट यह है कि प्रार्थनी वादनी को पति प्रशांत दास व ससुर व सास ने फोन करके इतना परेशान कर दिया कि रोज फोन पर फ्लैट, कार व नकदी की डिमांड करते रहे। पहले बोल रहे हो केटीएम बाइक मांग रहा है, फिर बोल रहे हो गाड़ी मांग रहा है, फिर बोल रहे हो कि नकदी मांग रहा है, फिर बोल रहे हो कि फ्लैट मांग रहा है, और बिना कारण झगड़ा शुरू कर देते थे। इन सभी लोगों के कारण प्रार्थनी वातनी के पिता मानसिक रूप से परेशान रहने लगे और तबीयत भी काफी खराब रहने लगी। वेल, आपके फादर की तबीयत खराब थी पहले, मैं इस चीज को एग्री करता हूँ, बट दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो इसका रीजन नहीं था। आपकी मदर हैज पास्ड अवे, सो प्रोबेबली वो डिप्रेशन में थे और उसकी वजह से उन्हें कोविड भी हो गया था शायद, और उन्हें हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। और इसका एक मेडिकल रीजन है, प्रॉपर पेपर्स पे, तुमने खुद मुझे पेपर्स प्रोवाइड करे हैं यार। और अच्छा, बाय द वे एक चीज और, 12th पॉइंट में रोज सास रोज फोन करके परेशान कर दिया। भाई, जब कोई किसी को फोन करता है तो फोन का रिकॉर्ड भी तो होता है ना? क्या आपके पास वो रिकॉर्ड है? ना ही मैंने ही आपको कितने मैसेजेस डाले हैं व्हाट्सएप पर, बट आपने मुझे वहां से भी ब्लॉक करके रखा हुआ है, ईमेल्स करे हैं, और मैंने उन, जितनी भी मेरी कॉन्वर्सेशन हुई है कभी भी आपसे, मैंने कभी आपसे कोई डिमांड नहीं करी, एक्सेप्ट मैंने आपसे सिर्फ इतना ही बोला है कि महिमा क्या मैटर है, इसे खत्म करो, मतलब क्या, मतलब व्हाट डू यू वांट, डिस्कस विद मी, टॉक विद मी, लेट्स टॉक इट आउट एंड रिजॉल्व इट। इसके अलावा मैंने कभी नहीं बोला। बट आपने इसको देखो कितना घुमा फिरा के, कि रोज कभी फ्लैट मांग रहे हैं, कभी नकदी मांग रहे हैं, कभी गाड़ी मांग रहे हैं, कभी केटीएम बाइक मांग रहे हैं, परेशान कर दिया। अरे यार, ऐसा कौन करता है यार आज के जमाने में? दिस इज, कौन से मिथिकल टाइम में रह रहे हो यार? और ये आई एम डैम श्योर कि आपने तो लिखा नहीं है, और जिस किसी ने भी लिखा है ये बड़ा जेनेरिक स्टेटमेंट है ये, और ये सब उसमें पाया जाता है, सब डीवी के, डोमेस्टिक वायलेंस के लिटिगेशन में। बट दिस इज वेरी, व्हेन आई रीड दिस इट फील्स, इट्स वेरी वियर्ड, ऑनेस्टली वेरी वेरी वियर्ड। 3rd पॉइंट यह है कि प्रार्थनी वादनी का घर बचाने के लिए जब कोई रास्ता नहीं बचा तो प्रार्थनी वादनी के पिता ने दिनांक 5 जुलाई 2021 को अपने फ्लैट जी डैश 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 नियर राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद प्रार्थनी वादनी के नाम पे कर दिया। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने प्रार्थनी वादनी व उसके पिता को तंग करना जारी रखा, जिसकी प्रतिलिपि संकलन है। अच्छा, बाय द वे, ये जो प्रतिलिपि संकलन है ये मैंने पढ़ा पूरा। इसमें तो ये लिखा हुआ है कि आपके फादर का, मतलब वो इतने बीमार हो गए थे आईसीयू में जाने के बाद कि उनका, मतलब उनका बचने का कोई स्कोप नहीं था, एंड उस रीजन की वजह से वो अपना घर बार आपके नाम पे करना चाहते थे।
और उसमें साफ साफ ये लिखा है कि आप किसी की भी वो जो विल डीड आपने इसमें अटैच करी है, उसमें साफ लिखा है कि आपके फादर ने किसी भी जोर जबरदस्ती से वो घर आपके नाम पे नहीं किया है, और वो भी घर, उनका बैंक अकाउंट, उनका घर, उनकी ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स, वो सब आपके नाम पे किया है। और आपका तो एक भाई भी है, आपके भाई को सिंपल उसमें लिखा हुआ है कि हमारा प्यार है उसके साथ। दिस इज सच अ जोक। आई मीन ऐसा कौन करता है? दिस इज वेल, इट डिस्प्लेज अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर फैमिली ऑनेस्टली, बहुत चीजें दिखाता है। और आपने इसका फायदा उठाकर इस सिचुएशन, क्योंकि आपके फादर की कंडीशन अच्छी नहीं थी फिजिक हेल्थ वाइज, तो आपने, आपके फादर ने वो घर आपके नाम पे करा जिसमें आप अभी रहती हो, वो घर आप बेसिकली आपके नाम पे है, वो घर आपका है, और आपने इसको तोड़ मरोड़ के 5 जुलाई 2021 को, अच्छा बाय द वे, ये जो 5 जुलाई 2021 को जब, अच्छा ये जो इंसिडेंट है कि प्रशांत के सास ससुर और प्रशांत दास ने रोज फोन करके फ्लैट कार व नकदी की डिमांड करी, इस रीजन, आप ये बोलना चाह रहे हो कि इस रीजन की वजह से आपके फादर ने 5 जुलाई को ये फ्लैट हमारे नाम पे कर दिया, मतलब सॉरी आपके नाम पे कर दिया। तो ये जो इंसिडेंट है ये 5 जुलाई से पहले का होगा, ये फोन पे रोज तंग करना, ये करना वो करना। आपके पास तो प्रूफ भी होगा, कोई वैलिड प्रूफ है आपके पास इस चीज का, कॉल्स का या फिर कॉल रिकॉर्डिंग का, जैसे आपने इसमें लिखा हुआ है कि बिना गाली के बात नहीं करता, जिसकी रिकॉर्डिंग भी प्रार्थनी वादनी के पास है। तो ये जो सास ससुर फोन करके इतना परेशान करते थे, कोई कॉल रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्डिंग, कोई मैसेज, कोई ईमेल, कोई लिखित में, कोई आवाज के द्वारा है आपके पास, क्या बस फालतू के एलिगेशन ही हैं ये? अगर है तो प्लीज सामने लेके आइए, बताइए, दिखाइए, मैं बहुत इच्छुक हूँ देखने के लिए। बट जहां तक मुझे लगता है आपने ये 11वां 12वां 13वां पॉइंट ये सब कुछ झूठ है, और बड़ा तोड़ मरोड़ के और बड़ा स्टाइल से ये चीज लिखी गई है। बट इसका कोई, आई डोंट थिंक, क्योंकि जो आपने ये डॉक्यूमेंट लगाया है कोर्ट में, इसमें इसका कोई भी जिक्र और एविडेंस नहीं है इसके लिए। ये सब झूठी बातें हैं, इनको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, एब्सोल्युटली जीरो। और बट ये बहुत, अगेन इट्स अनदर पॉइंट टू प्रूव दैट इट्स चीप, इट्स वेरी चीप। नीच तक ही अगेन हद पार कर दी। 14th पॉइंट यह है कि विपक्षी संख्या 2 व 3, मतलब 2 या 3, यह कि विपक्षी संख्या 2 या 3 ने फोन पर बोला कि फ्लैट तेरे नाम पर क्यों किया है। जो 5 जुलाई को आपके फादर ने आपके नाम पे एक फ्लैट किया है, वो मैंने या फिर मेरे घर वालों ने आपको फोन पर बोला है, जिसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर गाली गलौज की रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो तो इस चीज की भी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए आपके पास कि फोन पर बोला है। अच्छा रिकॉर्डिंग, बाय द वे, ये फोन की रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, बिना गाली के बात नहीं करता, तो मतलब रिकॉर्डिंग फोन की रिकॉर्डिंग ही होगी फिर, तो इसकी भी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्या बोलते हैं आपका कि विपक्षी संख्या 2 व 3 ने फोन पर बोला है कि फ्लैट तेरे नाम पे क्यों किया है, करना था हमारे बेटे प्रशांत के नाम पे करते, और 10 लाख कैश। 10 लाख कैश आजकल कौन रखता है भाई? टैक्स आप, मतलब आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा उस पर अगर आप 10 लाख कैश रखोगे अपने पास या फिर निकाल के लेके आओगे कहीं से। कार और बाइक का क्या हुआ? मतलब पूरा पॉइंट बेसिकली ये है, विपक्षी संख्या 2 व 3 ने फोन पर बोला कि फ्लैट तेरे नाम पर क्यों किया है, क्यों किया है, करना था तो हमारे बेटे के प्रशांत के नाम पे करते, और 10 लाख कैश, कार और बाइक का क्या हुआ? तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम बिना कार खरीदे घर वापस आने की कोशिश मत करना यार। महिमा रेबेका बेकन, आपके पास खुद के पास तो एक स्कूटर है, जाने कौन से जमाने का, आपके पास खुद कार नहीं है। एक लॉजिकल बात करो, ऐसे लोगों से मतलब कौन ही कार कार की डिमांड करेगा यार? मतलब शर्म की बात है ये तो बहुत शर्म की बात है कि कोई ऐसे इंसान से कार की बात करेगा जिसके पास खुद कार नहीं है। और 10 लाख रुपए क्या जा रहे हैं यार? अभी आपने ऊपर लिखा है कि मेरे फादर पादरी है चर्च में और उनकी इतनी इनकम नहीं है, और आप यहाँ पे अब लिख रहे हो कि 10 लाख रुपए कैश। यार पहले ही जब आपने समझा दिया है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, बट फिर से हम लोग बेसिकली, मैं और मेरे घर वाले, आपसे 10 लाख रुपए कैश और कार और बाइक और फ्लैट भी मांग रहे हैं यार, कुछ ज्यादा नहीं हो गया अभी? अच्छा तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम्हारे पास कहाँ पैसा है यार? अगर है तो मुझे तो पता नहीं भाई है कि नहीं है, बट हाँ आप इतने केसेस लड़ रहे हो, शायद मुझसे कमाने के लिए आप लड़ रहे हो।
खैर एनीवे दैट्स मैं यहाँ पे कुछ वो नहीं दूंगा अपना, क्या बोलते हैं, मैं अपना यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दूंगा, बट ये गलत है स्टेटमेंट। आपसे ऐसी कोई डिमांड नहीं करी 10 लाख कैश की, कोई घर की डिमांड नहीं करी। और बाय द वे, जैसे आप ये फोन रिकॉर्डिंग कर रहे हो यहाँ पे गाली गलौज की, तो आप ये जो 14वां पॉइंट है, 14th पॉइंट है, ये भी तो फोन पे बोला है, इसकी भी तो रिकॉर्डिंग होगी ना, फिर आपके पास है तो प्लीज लगा दीजिए, दिखाइए, प्रूफ करिए, एविडेंस दिखाइए अगर है आपके पास तो, कि आपसे फ्लैट मांगा, 10 लाख कैश मांगा, बाइक मांगी। माय गुडनेस। एनीवे 15th पॉइंट यह है कि जब प्रार्थनी वादनी व उसके पिता विपक्षी गणों की बातों से तंग आ गए तो समाज में कुछ लोगों को बुलवाकर बातचीत के मामले से सुलझाना चाहा, तो विपक्षी गणों ने साफ इनकार कर दिया कि अब हम तुझे नहीं रख सकते। जब प्रार्थनी वादनी ने अपने पति से कहा कि आपके पास तो पहले से ही कार है, तो दूसरी की क्या जरूरत है। अब आप यहाँ पे लिख रहे हो मेरे पास पहले से ही कार है। भाई अगर मेरे पास पहले से कार है तो मैं दूसरी कार क्यों मांगूंगा? मैं भाई इतना मेंटेनेंस कौन अफोर्ड, भाई कार ना चलाना इट्स नॉट एन इजी टास्क। उसमें पेट्रोल डलता है, उसकी मेंटेनेंस होती है, उसमें वेयर एंड टीयर होता है। और दूसरी मैं कार, मेरे पास ऑलरेडी, आपने यहाँ लिखा कि मेरे पास ऑलरेडी एक कार है और मुझे दूसरी कार चाहिए, और एक्स्ट्रा खर्चा मैं अब बर्डन अपने सर पे डालूं, एक कार संभालूं और फिर दूसरी कार भी संभालूं। इट डजंट मेक सेंस, इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। बट एनीवे लेट्स कंटिन्यू। सो हाँ, अपने पति से कहा कि आपके पास तो पहले ही कार है, तो दूसरी की क्या जरूरत है। गुड क्वेश्चन। तो विपक्षी संख्या 1 जो मैं हूं, मैंने रिप्लाई दिया, यह सुनते ही प्रशांत आग बबूला हो गया और कुछ दिन बाद कार को एक्सीडेंट करके फोन पर फोटो भेज दी और फोन पर बोला कि अब कार नहीं रही, नई खरीद कर दे दो, और बोला कि 10 दिनों में पैसा, कार और बाइक नहीं मिला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ओके हाँ, ये बात सच है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरी कार टोटल लॉस में गई है। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और उसी रात मैंने आपको फोन भी किया था महिमा, और मैंने आपको फोटोज भी भेजी अपनी कार की। एंड यू वर द, लेट मी टेल यू दिस, यू वर द फर्स्ट पर्सन whom I have informed। आप पहले इंसान थे जिसको मैंने इन्फॉर्म किया, और आपने कॉल पे मुझसे क्या बोला उसका भी प्रूफ है मेरे पास, मैं अभी प्रूफ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे चला सकता हूँ उस चीज को। बट अब हमारे बीच की बात है तो मैं आपसे डायरेक्टली फेस टू फेस, मतलब विथ ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे बोला मेरा एक्सीडेंट हो गया, आपका क्या रिस्पॉन्स था? अरे कोई बात नहीं, एक्सीडेंट तो हो गया, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। यू वर नॉट, यू वर 0% कंसर्न कि भाई हाउ एम आई, व्हाट हैपेंड, वेयर एम आई। कोई कंसर्न नहीं, बस आपको पैसा 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 दिख रहा था कि पैसा वापस मिल जाएगा। और आपने इस सिचुएशन, यार एक बताओ मेरी गाड़ी 0 लॉस में गई, मैं मरते मरते बचाऊं, मैं खुद अपना एक्सीडेंट इतना बुरा करूंगा कि मैं मर जाऊं कि मुझे दूसरी गाड़ी मिल जाए। भाई मैं कोई सेकंड हैंड तो गाड़ी चलाता नहीं था, जो भी थी मेरे पास थी, अब वो टूट गई है, खराब हो गई है, मतलब खत्म हो गई है, और मैं मरते मरते बचाऊं। और आपको यहाँ पे एक मजाक सूझ रहा है कि भाई एक्सीडेंट करके फोन पे फोटो भेज दी और बोला कार अब तो नहीं रही है, और 10 दिन में पैसा, कार और बाइक नहीं मिली तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सीरियसली मेट, लाइक सीरियसली, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? भाई ये भांग भूंग पी के लिखा था क्या ये? क्या लिखा है ये? कैसे स्टोरी घुमा रहे हो ये? समझ में नहीं आ रहा, तुम अपनी स्टोरी में खुद ही उलझ रहे हो मेरे भाई। क्या लिखा है इसमें ये? डज इट इवन मेक सेंस? इट डजंट मेक सेंस। कोई अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देगा कि उसे नई कार मिल जाएगी, और वो भी उसमें मरते मरते, वो खुद ही करेगा बाय द वे, और खुद ही मरते मरते बचेगा। अच्छा हाँ, इसमें एक पॉइंट और है कि जब 15वें 15th पॉइंट में कि जबकि प्रार्थनी वादनी व उसके पिता विपक्षी गणों से बातों से तंग आ गए तो समाज के कुछ लोगों को बुलवाकर बातचीत के मामले से सुलझाना चाहा। अरे बाय द वे लेट मी ऐड टू दैट, सो आपके फादर महिमा रेबेका बेकन और आप तो ने तो ब्लॉक कर रखा था मुझे और मेरे पेरेंट्स को हर जगह से। हम तो कांटेक्ट आपसे कर ही नहीं सकते थे। मैंने इनिशिएटिव लिया, अब मैं उन इंडिविजुअल का नाम नहीं लेना चाहूंगा अभी फिलहाल। उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे ये बोला कि प्रशांत
आपका ये सीन है, महिमा वांट्स टू ये वो उन्होंने कुछ बोला मुझसे, कि तो मैंने उनसे बोला ठीक है मैटर सॉल्व करते हैं, बात करते हैं। फिर उसके बाद से बात वहीं पे खत्म हो गई। अच्छा बाय द वे, आप लोग का ये पैटर्न है, पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, लेट मी टेल यू दिस। आप लोगों से कभी बात करो ना तो आप लोग लटका देते हो, दोनों, फादर और डॉटर। आपसे कोई बात इनिशिएट करो, उसके बाद आप उस चीज को आगे नहीं बढ़ाते हो, वहीं पर रोक देते हो। तो यही सेम इंसिडेंट, वो जो सज्जन है, जो इंडिविजुअल है, उन्होंने मुझे फोन करा, बात वहीं रुक गई। फिर मैं उनके पीछे पड़ा, मैंने उनसे बोला सर प्लीज हम लोग अगर एक बार म्यूचुअली मिल जाएं और बात कर लें तो चीजें अच्छी होंगी। हम लोग इंग्राहम मेथोडिस्ट चर्च में, जो वहाँ के पास्टर थे, 2021 की बात है, 2021 दिसंबर, 4 दिसंबर को हम लोग मिले इंग्राहम इंस्टीट्यूट में गाजियाबाद में, जो वहाँ के पास्टर थे उनके सामने, और आपकी तरफ से 2-3 लोग आए थे उनके सामने। और वहाँ पे आपने फुल जो ड्रामे करे हैं, फुल ड्रामे करे, मेरे आंखों देखी बात है, मेरे सामने की बात है, मैंने सब कुछ देखा है। तो आप इसमें तो कुछ झूठ बोल नहीं सकते महिमा। आपने ये चीज जो आपको पढ़ा या लिखा, आपने ये जो सब इसमें लिखा हुआ है ना, आपने यही मतलब थोड़ा सा चेंज फॉर्मेट में, बिकॉज उस टाइम तक आपकी स्टोरी इतनी पक्की नहीं थी जितना आप जो आपने अभी लिख के दे दिया है। उस टाइम जो भी आपकी स्टोरी थी आपने वो लिख के दिया, एंड बस यही उल्टी सीधी बातें, मतलब रेजोल्यूशन तो है ही नहीं, बस उल्टी सीधी बातें करनी है, उल्टी सीधी। इट फेल्ट, मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी बाइपोलर वाले इंसान से बात कर रहा हूँ जो प्रॉपर अपने मेनिया फेज में है। दैट इज हाउ आई फेल्ट, मतलब टोटली स्टैटिक, टोटली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। व्हाट आर यू इवन टॉकिंग अबाउट? आप बोल क्या रहे हो? आपको खुद ही नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, कुछ भी रैंडमली, कुछ भी पागलों की तरह। सो दैट वाज द मीटिंग। और ऑफ कोर्स मैंने आपको वहां पे उस मीटिंग में मैंने आपको टाइम दिया था कि प्लीज मुझे सोच के बताइए। आपने उस टाइम का कुछ यूटिलाइजेशन नहीं किया, आपने और उल्टा उल्टा इंसल्ट किया। तो भाई अपनी इंसल्ट कौन सहेगा? मैं वहां से चला गया। और आपके झूठ, आपको तो भाई यू आर अ कंपल्सिव लायर महिमा रेबेका बेकन। दिस इज, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, आई एम टेलिंग यू अबाउट योर बिहेवियर। दिस इज व्हाट इट इज, यू आर अ कंपल्सिव, यू आर अ बिग टाइम लायर। और आपके झूठ सुनने के लिए कोई वहां नहीं बैठा हुआ है, और कोई बैठेगा भी नहीं। और आज के बाद भी अगर मैं आपसे कभी बात करूंगा, अगर आपने झूठ बोला मुझसे, तो मैं वहां से उठ के चला जाऊंगा। सिंपल है। मैं आपको, आप इसे वार्निंग समझ लो मेरी, या फिर आप मेरा डिसीजन समझ लो, जो भी आपको समझना है समझ लो। क्योंकि कभी ना कभी तो आप आओगे सामने, बात करोगे। अगर वहां पे एक बार भी झूठ बोला, आई विल बी आउट, एंड लेट्स सी क्या होता है फिर आगे। जो अभी हो ही रहा है वो ही होगा भाई, लटके रहो और क्या बोलते हैं, लटका के रखो। मैं तो चाहता हूँ चीजें जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो, आप अपनी लाइफ कंटिन्यू करिए, अच्छे से जिए। मैं अपनी लाइफ कंटिन्यू करता हूँ, मैं अच्छे से जीता हूँ। बट आप चीजों को और खराब करना चाहते हैं तो फिर वो आपके हाथ में है। आई रियली कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो ये हो गया हमारा 15 पॉइंट, जिसमें उन्होंने विपक्षी गणों से बातचीत करी करी थी, और प्रशांत ने अपनी कार का एक्सीडेंट किया था, जो कि झूठ है। कौन अपना कार का एक्सीडेंट करता है? 16th पॉइंट यह है कि दिनांक 25/11/2021 को रात के समय विपक्षी संख्या 1 प्रशांत दास शराब के नशे में प्रार्थनी वादनी की जॉब पर नोएडा एक्सटेंशन आया और कंपनी के बाहर गेट पर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थनी वादनी को बुलाने लगा। गार्ड के मना करने पर भी नहीं माना, तब प्रार्थनी वादनी को मजबूरन बाहर आना पड़ा। बाहर आते ही प्रशांत दास ने प्रार्थनी वादनी को बहुत गंदी गंदी गाली दी और पैसे 20,000 रुपए फोन पे ट्रांसफर करने के लिए बोला। प्रार्थनी वादनी ने बोला कि मैंने पहले से ही आपको आपके ऑफिस का किराया, फर्नीचर व अन्य सामान व पेट्रोल आदि कुल मिलाकर अब तक करीब 1.5 लाख के आसपास दिए हैं। अब आपको किस लिए पैसे चाहिए? हाउ 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 आपको, मतलब हाउ इजी आर यू लाइक पुटिंग योरसेल्फ हियर? बट तू अब, वरना तो आप तू से नीचे बात नहीं करते, तू तड़ाका तो आपको इतना इजी है आपके लिए, मतलब इट इज वन ऑफ योर नेचर, दैट इज हाउ यू टॉक। यहाँ पे तो आप करके लिखा हुआ है, दैट इज सो रिस्पेक्टफुल ऑफ यू। वाओ, आई एम रियली थैंकफुल कि आपने इसमें तो रिस्पेक्टफुली लिखा ही हुआ है। बट एनीवे,
सो पैसा किस लिए चाहिए और मेरे पास अभी नहीं है। प्रार्थनी वादनी ने मना करने पर विपक्षी संख्या एक को जोर जोर से चिल्लाने लगा और गाली गलौज करके चला गया, जिसकी वजह से प्रार्थनी की इमेज कंपनी में खराब हो गई। ओ माय गुडनेस। मतलब 25/11/2021, मतलब 2020 25/2020 नवंबर 25 तारीख को मेरी शादी हुई थी महिमा रेबेका बेकन आपके साथ। और 25/11/2021 को मैं आपके ऑफिस में आई, जो बिल्कुल सच बात है। मैं अपने फ्रेंड के साथ अपने महिमा के ऑफिस में गया था और मैंने महिमा को फ़ोन किया था। और मेरे पास पोस्टपेड नंबर है जिसमें आई कैन ट्रैक आउट माई डिटेल्स वेरी इजीली, और शायद पड़ी भी होगी मेरे पास। मेरे पास मेरे उसमें पड़ी होगी। तो मैं अगर उस टाइम का डेटा निकालूं तो इट इज़ वेरी इजी दैट आई हैव कॉल्ड यू। आई मैं वहाँ पे आपके ऑफिस में आया अपने फ्रेंड के साथ, आपको केक फ्लावर्स दिया, एनिवर्सरी विश करी, और आप वहां पे भी आपका अगेन वो बाइपोलर दैट मेनिया फेस जस्ट, मतलब आपने बिल्कुल भी प्यार से बात नहीं करी, आपने बहुत बदतमीजी से बात करी। हमारी एनिवर्सरी थी और आपने देखो 16 पॉइंट पे अपनी एनिवर्सरी तक को नहीं छोड़ा, आपने उसको भी तोड़ मरोड़ के इसमें घुसेड़ दिया, घुसा दिया। इससे आपकी साफ साफ इंटेंशन पता लगती है आप चाहती क्या हो। चिल्ला चिल्ला कर भाई, मेरे पास लाइव विटनेस है इस चीज का। मैं अपने जो मेरे साथ फ्रेंड आया था मैं उसको कोर्ट में खड़ा कर सकता हूँ। क्या आप उस गार्ड बाहर गेट पर चिल्लाने लगा, और गार्ड के मना करने पर भी, गार्ड आजकल मना करते हैं भाई साहब, गार्ड सीधा धोते हैं। गार्ड बाउंसर से कम नहीं होते हैं आज के ज़माने में किसी भी ऑफिस के बाहर। बट आपका गार्ड तो बहुत सीधा साधा होगा बेचारा, तो इसलिए आपके मना करने पर भी मैं क्या नाम है, प्रशांत नहीं माना और आपसे 20,000 रुपये भी अच्छा, बेसिकली आपके बोलने का ये मतलब है, मैं 25/11/2021 को आपके ऑफिस में आया, गाली गलौज करी, शराब पी रखी थी मैंने, धुत था मैं एकदम, और मैंने आपसे 20,000 रुपये लेने आया था। क्यों आया था 20,000 रुपये लेने? कि मैं और शराब पी सकूं अपनी एनिवर्सरी के दिन आपसे मांग के? हो गॉड। और जोर जोर से चिल्ला भी रहा था मैं, जिसकी वजह से प्रार्थना की इमेज कंपनी में खराब हो गई। भाई आपकी इमेज, तो मैं क्या बोलूँ इमेज के बारे में, इसमें आई हैव नो कमेंट्स अबाउट इट, बट आपकी इमेज मेरे सामने तो डेफिनेटली खराब हो गई है बहुत ज़्यादा, जैसे आपने इसमें लिखा हुआ है। कैसी इन्फॉर्मेशन, क्या लिखा है यार, मतलब सीरियसली भाई, अगर क्या बोलूँ मैं, ऐसे पॉइंट्स अगर लिटरली कोई अक्लमंद इंसान इस चीज़ को लिख रहा होता ना, तो भाई ऐसे इतने लूप होल्स नहीं छोड़ता बीच में। और इसमें इतने लूप होल्स हैं, इतने लूप होल्स हैं, ओ माय गुडनेस। मतलब झूठ, मतलब वो है ना, झूठ जो बोलेगा वो तो झूठ तो झूठ ही है ना। यू कांट रियली, आप झूठ को कितना सच नहीं कर सकते हो, झूठ के बाद आप और झूठ बोलते हो। सो दैट इज व्हाट इट इज अबाउट। 17वें नंबर पे, 17th नंबर पे यह है कि विपक्षी गणों ने कार पैसा, भाई अभी तक ये कहानी अभी यहीं पे घूम रही है। यहाँ यह है कि विपक्षी गणों ने कार पैसों व बाइक की डिमांड की। अरे भाई इस 11वें पॉइंट से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ मैं। पैसा पैसा बाइक पैसा कार, माय गुडनेस, ओ माय गॉड, आई एम सो लालची। मुझे सिर्फ पैसे से मतलब, मुझे गाड़ी से मतलब है, मुझे सिर्फ फ्लैट से मतलब है, मुझे पैसों से मतलब है। दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग टू रीड, टू बी ऑनेस्ट। ये कि विपक्षी गणों ने कार पैसा व बाइक की डिमांड की, पूरी ना होने पे इसी तरह तंग व परेशान कर दिया। भाई मैंने आपसे सिंपल बोला था, आपको रहना है तो बताओ, नहीं रहना तो मत बताओ, चुप रहो। आपने चूज किया कि आप चुप रहना चाहते हो, फिर भी मुझे एक आंसर तो चाहिए ना। आप कब तक चुप रहोगे? 1 साल, 2 साल, भाई तीसरा साल स्टार्ट हो गया है, आप कब तक चुप रहोगे? मुझे जवाब चाहिए महिमा रेबेका बेकन, आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम यू। और मैंने आपको कभी, मतलब 17th पॉइंट यह है कि विपक्षी गणों ने कार पैसों व बाइक की डिमांड की, पूरी ना होने पर इस तरह तंग और परेशान कर दिया कि प्राथमिक वादनी कहीं इन लोगों की शिकायत न करते। भाई पहले तो आपने 4 इसमें लिखा है, आई थिंक 8th और 9th पॉइंट पे लिखा है 4 तारीख को, नहीं 10वें पॉइंट पे लिखा है कि 4 तारीख को आपने शिकायत कर दी थी ऑलरेडी, जैसे लिखा हुआ है आपने। अब यहाँ पे लिखा है कि इन लोगों की शिकायत ना कर दे, मतलब हम लोग को डर लग रहा है कि आप हमारी शिकायत ना कर दो, इसलिए विपक्षी संख्या 1 ने पहले ही खुद ही की वीडियो दिखाने के लिए बनाता है,
और उसमें बहुत शरीफ और अच्छा हूँ, इसकी कोई गलती नहीं है, प्रार्थनीवादनी इसके पिता की ही गलती है, जिससे सारे स्क्रीनशॉट प्रतिलिपि संकलन। भाई एक बार बताओ, दिखाता कौन है? जो आप हो वो हो, सबको नजर आता है। इसमें दिखाने वाली बात क्या है? जो सच बात है वो सच बात है, जो सच है वो है। और कोई इंसान परेशान होगा तो ऑफ कोर्स, और जब आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो और क्या ऑप्शन बचता है किसी के पास? बताइए भाई। आप ये कोई महिमा, ये आपकी रिलेशन किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली रिलेशनशिप नहीं चल रही है, जिसमें कि आप ठीक है आज मैंने तो ब्लॉक कर दिया, आज मैंने तो छोड़ दिया। भाई यू हैव मैरिड, यू हैव मेड अ कमिटमेंट टू समबडी। अगर आपको नहीं निभाना तो खत्म करो, आगे बढ़ो भाई लाइफ में। इट्स दैट इजी। बट किसी को लटकाना, वो बॉयफ्रेंड जैसा गर्लफ्रेंड जैसा ट्रीट करना, ब्लॉक कर देना जैसे आप कर रहे हो अभी, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। और शांत हो जाना बिल्कुल, ब्लॉक करके एकदम चुप, कोई आंसर ही नहीं देना। भाई दिस इज मेंटल टॉर्चर, यू आर डेविल, यू आर बिहेविंग लाइक डेविल, दिस इज एंड यू। आप तो बोलते हो जीसस क्राइस्ट, ये वो ये, अब वेयर इज योर क्रिश्चियनिटी? इज दिस व्हाट क्रिश्चियनिटी टीचेस यू? टू बी क्वाइट, not to talk to people, not to talk to your husband whom you got legally married to in front of people, in front of society. Is that what your parents have taught you? Is, I don't know, well अगर आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ सिखाया होता तो आपका फादर आपको आपके साथ ऐसे नहीं रह रहा होता अभी तक। जो भी था, जो भी है, उन लोग उनका मोटिव उस चीज़ में मैं कुछ उस पर बोलना नहीं चाहूँगा अभी फिलहाल। बट गलत है, दिस इज रॉन्ग। मतलब कि बहुत शरीफ, अपने आप को बहुत शरीफ और अच्छा हूँ। भाई मैं शरीफ हूँ और मैं बहुत अच्छा हूँ, वो दिख रहा है। इसमें कोई मैं फेक नहीं कर, मैं कोई सलमान खान शाहरुख में, आई एम नॉट एन एक्टर, आई एम नॉट एट ऑल एन एक्टर, आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एंड आई, दिस इज हु आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। अगर मुझे आपको लग रहा है मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, बेवकूफ़ इंसान हूँ, तो ठीक है मैं बहुत बेवकूफ़ और बुरा इंसान हूँ। अगर लोगों को लग रहा है मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ तो मैं अच्छा इंसान हूँ। आई मीन इट्स ऑल एवरीबॉडीज परसेप्शन। सबके पास अपना राइट है सोचने का, किसी के बारे में भी कुछ भी जो उनका मन करे। आप क्यों यहाँ पे वो दे रहे हो कि मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं मतलब कि मैं ऐसे जता रहा हूँ कि मैं बहुत शरीफ हूँ? भाई मैं हूँ, जो हूँ वो हूँ। आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड टॉकिंग टू यू, दिस इज हु आई एम, दिस इज प्रशांत। 18वां पॉइंट बहुत लंबा है, माय गुडनेस। ओके, यह कि विपक्षी संख्या एक जो मैं हूं, एक नोटिस दिनांक 7/12/2021 बिल्कुल गलत व झूठे तथ्यों पर आधारित प्रार्थनीवादनी को प्रेषित किया, जिसका जवाब प्रार्थनीवादनी द्वारा दिया गया, जिसकी प्रतिलिपि संकलन है। हाँ ये बात सच है, मैंने आपको 7/12/2021 को एक लीगल नोटिस भेजा था, और बिल्कुल भी झूठे तथ्यों पर नहीं था। मेरे पास ईच एंड एवरी पॉइंट आई कैन प्रूव इन दैट लीगल नोटिस। बट वो सच था, मैं बस इसके बारे में यही बोलूंगा कि वो सच पे बेस्ड है, और उसके मेरे पास आई कैन प्रूव दैट इफ आई हैव टू। और बट हाँ, जो डिटेल्स हैं उसके मैं अभी यहाँ पे इस वीडियो में नहीं डालना चाहूँगा, क्योंकि उसमें काफ़ी और पर्सनल डिटेल्स हैं जो आपने लिखा है, जो मैंने लिखा है। तो आई थिंक दैट वुड बी अप्रोप्रिएट हेयर, वो बिल्कुल सही नहीं होगा वो यहाँ पे डालना और उसके बारे में डिस्कस करना अभी। हाँ बट अगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल क्यों नहीं, आगे भी करेंगे, डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। लीगल नोटिस तो कर ही सकते हैं। ओके सो जिसकी प्रतिलिपि संकलन है, हाँ ठीक है। नोटिस का जवाब प्राप्त होने के बाद विपक्षी संख्या एक ने, मैंने प्रार्थनीवादनी व उसके पिता को बदनाम करने के लिए इंग्राहम मेथोडिस्ट चर्च गाजियाबाद के फेसबुक पेज पर बदनाम करने की नीयत से प्रार्थनीवादनी व उसके पिता के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा लिखकर पोस्ट कर दिया। भाई मुझे कुछ पोस्ट, पहली बात मुझे कुछ पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपके फादर के बारे में ऑलरेडी लोगों ने इतना उल्टा सीधा ऑलरेडी लिख रखा है, क्योंकि उनके उनके बिहेवियर, उनकी हरकतें, उनकी प्रैक्टिस ऐसी है। वो ऑलरेडी फेसबुक पे है, आप उनका नाम सर्च करिए ऑटोमेटिकली आएगा, जो लोगों ने ऑलरेडी डाल रखा है आपके फादर के बारे में। सो मुझे, मैं कोई नया बंदा नहीं हूँ, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। जिस इंसान की ऑलरेडी इतनी इंसल्ट है मार्केट में, मैं ऊपर से चढ़ के और क्या इंसल्ट करूँ? एनीवे, जिसके पूरे समाज में वादनी व उसके परिवार में बेइज्जत होना पड़ा, और रोज प्रार्थनी वादनी को व्हाट्सएप ईमेल बहुत गलत गलत लिख के मैसेज करके परेशान कर दिया। भाई है कोई प्रूफ? ईमेल तो प्रूफ होता है ना। ये भी मत बोलना भाई मैं तो ईमेल डिलीट कर देती हूँ, और मैं तो भाई अपनी व्हाट्सएप चैट्स डिलीट कर देती हूँ। होगा ना, कुछ तो होगा। ये तो लिखित में होता है व्हाट्सएप और ईमेल्स, है कुछ, कुछ भी है जो आपने लिखा है इसका, भाई कुछ होगा ना फिजिकल में सब्सटेंस।
अच्छा, इसमें एक और है, एक और ये चीज़ है कि फ़ेसबुक में बहुत उल्टा-सीधा लिखकर पोस्ट करते हैं जिसके पूरे समाज में प्रार्थना-वादना और उसके परिवार को बेइज़्ज़त होना पड़ा। भाई, जैसी आपकी हरकतें हैं ना अभी, आप किसी से शादी करके उसको बेवकूफ़ बना के कहाँ-कहाँ मतलब आप क्या कर रहे हो मुझे क्या पता है यार, मैं कोई सर्विलेंस तो कर नहीं सकता आपके ऊपर, 24 घंटे कैमरा तो लगा नहीं रखा मैंने। आपने मुझे हर जगह से ब्लॉक करके रखा है। ये सब क्या जताता है? क्या जताता है ये सब? ये सब क्या शो करता है? मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ वेरी एविडेंट। ये ऐसी हरकतें कौन करता है और क्यों करता है? ये सबको पता है। ये सबको पता है। मैं अब क्या बोलूँ इस चीज़ के बारे में? आई डोंट वांट टू से इट, बट इट इज़ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। एवरीबॉडी जिसको कुछ करना होता है वो कर लेता है। बस ये है, और उसके लिए दूसरों को फंसाता है। अब यही इंटेंशन आपकी क्लियर हो रही है यहाँ से एक्चुअली। और आप लिखते हैं व्हाट्सएप, ईमेल। भाई किसने स्टोरी लिखी है? प्रूफ तो दे दो इसके। लिटरली तुमने तो अपने आप को इसमें फंसा लिया। मतलब अगर लिटरली अगर मैंने लॉ पढ़ी होती ना, मतलब, और मैं प्रैक्टिस कर रहा होता, मैं तो भाई आपके मतलब आपको कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पे लेता भाई। एक एक पॉइंट गलत है इसमें। ईमेल व्हाट्सएप पर बहुत कुछ गलत गलत मैसेज लिखकर परेशान करते हैं। भाई दिखाओ अगर आपके पास है तो। प्रार्थनी वादनी व उसके पिता को बहुत गंदी गंदी गालियां देता है। बिना गाली गलौज के बात ही नहीं करता। यहाँ तक कि प्रार्थनी वादनी की पहली वाली जॉब का लिंक निकाल कर वहां के इंचार्ज से प्रार्थनी वादनी के चरित्र के बारे में जांच पड़ताल पड़ताल करने लगा और अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला कि प्रार्थनी वादनी उसको परेशान कर रही है, जबकि आज तक प्रार्थनी वादनी ने अपना घर बचाने के लिए बहुत कोशिश की। भाई आप मुझे ना एक कोशिश दिखा दो भाई, मारे बेका बेकन। एक कोशिश आपने या आपके फादर ने करी हो, सिर्फ एक, इन 3 सालों में, जब से मेरी शादी हुई है और आज की डेट तक। एक, सिर्फ एक, दैट्स इट। आपने आज तक फोन नहीं किया, आपने आज तक ईमेल नहीं किया, आज तक आपने खुद से आपने और आपके फादर ने कोई इनिशिएटिव कॉन्वर्सेशन में नहीं लिया। बीच में लटका के छोड़ा हुआ है। क्या रीजन है वो आपको पता है, आपके फादर को पता है। बस आपने आज तक, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। अच्छा, बाय द वे, सो वाद ने अपना घर बचाने के लिए कोशिश करी। अरे भैया तुमने कोई कोशिश नहीं करी, कुछ नहीं करा। तुमने तो बर्बाद करने की कोशिश, बर्बाद करने में तो 110% भाई, ऑन टॉप ऑफ इट 10% बोनस दिया है आपने उसमें तो, बर्बाद करने के लिए। अब उसके पीछे क्या रीजन है बर्बाद करने के लिए, गॉड नोस। बिकॉज आप बात भी नहीं कर रहे हो, उस चीज को सॉल्व भी नहीं कर रहे हो। सो ओनली गॉड नोस, गॉड नोस एंड यू नो एंड योर फादर नोस, दैट्स इट। और मे बी ओनली यू नो, मे बी द इवन फादर इज नॉट अवेयर। फादर को भी नहीं पता भाई चल क्या रहा है मामला असली में। होगा कुछ ना कुछ भाई, बट होगा तभी तो। मतलब एवरीबडी नीड्स इमोशनल सपोर्ट यार, मतलब सबको चाहिए होता है इमोशनल सपोर्ट। अगर आप यहाँ नहीं मिल रहा तो कहीं और तो मिल रही होगा। दैट इज हाउ इट गोज। भाई सबको खाना खाना होता है, अगर घर पे नहीं मिल रहा तो ढाबे पे जाके खाता है, ढाबे पे नहीं मिल रहा तो घर पे जाके बनाता है। दैट इज हाउ इट गोज, दिस इज हाउ सिंपल इट इज। दिस इज ह्यूमन बिहेवियर, दिस इज एनिमल बिहेवियर, दिस इज जनरल बिहेवियर फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, परिवार को बदनाम कर दिया। भाई तुम्हें कोई बदनाम नहीं कर रहा, तुम अपनी बदनामी खुद कर रहे हो। तुम्हारी जैसी हरकतें है ना फादर और डॉटर की, तुम अपने अपनी बेवकूफ डिसीजन से, लिटरली यू गाइज कैन नॉट टेक गुड डिसीजंस। इट इज वेरी क्लियर। आई एम नॉट ब्लेमिंग you, but this is my observation about you people. You guys do not know how to take decision, and whatever decisions you take, it's a very foolish decision, and it ends up killing somebody at the end. That is the intensity actually of your decision making. So rough, so amateur, so foolish, so bad. Literally take training for it. Go on YouTube and watch that instead. It's a very kind and humble suggestion to you people. 19th point यह कि कोई रास्ता ना पाकर प्रार्थनी वादनी ने एक लीगल नोटिस रोकने के लिए मैसेज, कमेंट, वीडियो शेयर ना करने के लिए, ईमेल रोकने के लिए बाबत भिजवाया, लेकिन विवक्षी संख्या 1 ने उपरोक्त का जवाब 5/2/2022 को ईमेल के माध्यम से दिया और मैसेज करके बोला कि आज रोज डे है। रोज मिला क्या? रोज, रोज लिखा है, रोज। आज रोज डे है, रोज मिला क्या? जिसकी प्रतिलिपि संग्रह ने, भाई दिखा दो। अच्छा, ये प्रतिलिपि संग्रह किसकी है? कि ये लीगल नोटिस की है कि ये रोज डे मिला है? रोज
उसकी प्रतिलिपि संग लेना, किसकी प्रतिलिपि संग लेना, क्योंकि रोज वाली तो मुझे प्रतिलिपि मिली नहीं आज तक, और ईमेल पे करा तो मतलब वैलिड प्रूफ होगा, पक्की बात, और लीगल नोटिस भेजा तो आपने तो डिलीट भी नहीं किया होगा। प्लीज प्रूफ कर दीजिए महिमा, प्लीज प्रूफ कर दीजिए। मैं तो देखना चाहता हूँ। मैंने हैप्पी रोज डे भाई 5/2 को रोज डे होता है, 5/2 को रोज डे होता है क्या? आई चेक इट लेटर ऑन। मुझे नहीं लगता 5/2 को रोज डे होता है, बट हाँ मैंने आपको लीगल नोटिस भेजा था, ईमेल करा था, बट उसमें मेरे को लिखा नहीं था, मैंने लिखा था प्लीज फाइंड इट अटैच्ड, जहां तक मुझे याद है। मेरी लैंग्वेज ऐसी ही होती है यार, प्लीज फाइंड इट अटैच्ड, PFA ऐसा कुछ ये लिखा होगा। हैप्पी भाई मैं कोई, तुम तो मुझे ऐसे KTM बाइक रोज डे है, इट अपेयर्स कि भाई तुम तो फुल छपरी समझते हो मुझे, मैं छपरी टाइप लौंडा हूँ और छपरीगिरी दिखाता हूँ, गाली गलौज, दारू पी रहा हूँ, आप लड़की से पैसे मांग रहा हूँ, और रोज डे पे रोज भी ओह गॉड। अच्छा ये रोज है कि रोज है? आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब रोज मिला क्या? रोज मतलब एवरीडे मिला कि रोज मतलब रोज, लाइक हैव यू गॉट द रोज ऑन द रोज डे? इज दैट व्हाट यू मीन? ईमेल के माध्यम, भाई होगा प्रूफ तो आपके पास। मैंने ऐसा कोई ईमेल नहीं किया हैप्पी रोज डे टू एनीबॉडी, as far as I remember and as far as my conscience says. I am not that cheap. इतना मेरा I have some etiquettes while typing, so that's not me. Anyway, 20th point यह कि प्रार्थनी वादनी ने एक शिकायत पत्र दिनांक 8, भाई कितनी शिकायत करती है लड़की भाई पुलिस वालों से। ये अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनना जरा। यह कि प्रार्थनी वादनी ने एक शिकायत पत्र दिनांक 18/2/2022 18 फरवरी 2022 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला गाजियाबाद को दिया गया, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब को दिया गया था। उपरोक्त शिकायत पत्र पर थाना नंदग्राम SHO के द्वारा एक मुकदमा अपराध संख्या 0712/2022 अंतर्गत धारा 498A, 504, 506 एवं डाउरी प्रोबेशन एक्ट 3 और 4 के तहत दर्ज किया गया था। प्रतिलिपि संग्रह। अच्छा भाई अब ये एक बात बताता हूं तुम्हें महिमा, कभी भी कोई मैट्रिमोनियल इशू होता ना, कभी भी कोई भी, चाहे आप डोमेस्टिक वायलेंस, 498 डाउरी, या फिर मेंटेनेंस, या फिर डाइवोर्स, नेम इट, कुछ भी होता है, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, ऑनरेबल हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है प्रॉपर। और आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, नंदग्राम थाना गाजियाबाद पड़ता है, आपका पड़ोसी है, तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी करी हुई है कि भाई पहले मीडिएशन होता है। मीडिएशन का मतलब होता है भाई पहले इन दोनों हस्बैंड वाइफ को बैठाओ और बात कराओ, अगर मैटर सॉल्व हो सकता है तो करो, अगर नहीं हो सकता तो फिर और उसके आगे एक्शन लो। अच्छा ऐसा कोई एक्शन हाँ मेरे केस में नहीं हुआ, मेरे पर FIR कर दी प्रॉपर 490 डाउरी की, 504 की, 506 की, और डाउरी प्रोबेशन एक्ट 3-4 की, बिना किसी मीडिएशन के, बिना किसी विमेन सेल के, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट SHO सर जो थे, शक्ल देखी मुझे, एक तो फोन करा उन्होंने कि प्रशांत आप आइए, और आपकी साइड आपकी वाइफ ने कंप्लेंट करी है। जो कंप्लेंट मतलब 1 साल के सेपरेशन के बाद करी गई थी, और 1 साल हम लोग साथ में नहीं रहे, हमारा कोई कम्युनिकेशन ज्यादा नहीं था बाय द वे। सो 1 साल के, और वो भी अलग ज्यूरिडिक्शन में, गाजियाबाद में 3 महीना रही बस मेरे साथ, और 1 साल के बाद कंप्लेन करती है डाउरी की। और SHO सर से का फोन आया मेरे पास, बोलते हैं प्रशांत आप आइए और आपकी स्टोरी हम सुनना चाहते हैं, क्या है आपकी साइड, आपकी वाइफ ने कंप्लेंट करी है। मैं गया भाई, SHO सर ने मेरी सिर्फ शक्ल देखी है और वहां पे मेरे नाम पे FIR काट दी, बिना कुछ सुना, बिना कोई मीडिएशन, बिना कोई विमेन सेल, बिना कोई, भाई मुझे तो समझ कितने पैसे खिलाए थे भाई। लिटरली कोई फॉलो नहीं हुआ, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं हुआ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए बोल रहा हूँ नंदग्राम थाना इज नॉट अ गुड प्लेस टू गो, मतलब वहां पे फुल सब कुछ चलता है भाई साहब। तो ये सिनेरियो है, चलो कब हो गई तो हो गई, अब क्या कर सकते हो। अच्छा हाँ, आज की डेट तक उस पर कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई आज तक, आज की डेट तक 498A, 504, 506 डॉरी प्रोबेशन 3-4 कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कुछ भी नहीं। सिर्फ जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो चेंज होते रहते हैं। एक बार बार फोन आया था उनका, भाई अच्छा क्या सब बढ़िया, मतलब हाँ सब बढ़िया, ये चलता है, दैट्स इट। सबको पता है ये झूठ है। अब एकदम फेस वैल्यू पे, बिना मीडिएशन के, बिना
ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को तहस नहस करते हुए आप किसी पे डायरेक्ट कर रहे हो एफआईआर, तो कहाँ चलेगा मामला यार, कहाँ चलेगा बताइए। मतलब आप तो भगवान ही हो गए फिर तो, और क्या है। आप ऐसे भगवान नहीं बन सकते ना। एनीवे आपके ऊपर ही बैठे हैं लोग, पर चलो कोई बात नहीं। तो आपने ये करवा दिया जी मेरे ऊपर, 18/2/2022 को आपने कंप्लेंट करी, जो आपने लिखा है। तो मैंने डाइवोर्स डाला है 24 फरवरी 2022 को, आपने 18 को पहले ही कंप्लेंट कर दी मेरी। अच्छा, मतलब पहले, मतलब पहले आपने स्टार्ट किया, मेरे डाइवोर्स डालने से पहले आपने किया। ये समझ में आ रहा है इस पेपर से। बट आपकी जो एफआईआर है वो 26 तारीख को लॉन्च हुई, और मैं 26 तारीख को ही आया था पुलिस स्टेशन, जिन्होंने मेरी शक्ल देके एफआईआर काउंट कर दी। बट आपने 18 को कंप्लेंट करी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को डायरेक्ट। अभी जब, एक बार बताओ मुझे यार, आपको कोई दिक्कत है, आप सीधा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पे जाते हो, या फिर आप नॉर्मल पुलिस स्टेशन जाते हो, और विमेन से रिलेटेड तो विमेन सेल में जाते हैं ना डायरेक्ट। आप मतलब आपकी इंटेंशन ही ये थी कि डायरेक्ट भाई साहब इसको तो करना ही है, कुछ भी हो जाए फुल बदला लेना है, फुल बदला। अब बदला भी किस चीज का लेना है मुझे नहीं पता, अपनी ईगो शायद हर्ट हो गई थी, ईगो हर्ट करने का बदला, क्या ये था महिमा आपका इंटेंशन। बट एनीवे, अच्छा बाय द वे इसमें ना टोटल 27 पॉइंट्स हैं, 27 में भी ABCDE 7 अलग पॉइंट्स हैं। तो अभी 20 पॉइंट हमने कवर कर लिए प्रॉपरली, अभी जो बचे हुए हैं उनको भी करते हैं। हाँ ठीक है बिल्कुल। अभी 20 पॉइंट एंड आई विल टेक अ ब्रेक।